morning to everyone. Today, we are going to start with the next chapter, that is Indigo. As you all heard about Indigo, as this event took place in the Champaran district of Bihar. This Indigo is an historical chapter. So, in this chapter, there are different events. One by one, you have to just remember these events followed in the chapter. So the Indigo is about how Mahatma Gandhi struggled for the underprivileged peasants of Champaran. The peasants used to live a rich life and were under an agreement to grow indigo. This indigo is a real life account from Mahatma Gandhi's life, taken from a book written by Louis Fisher that is named as the life of Mahatma Gandhi. This indigo chapter, students based on the critical condition of sharecroppers. So, सबसे पहले, I would like to tell you what is the meaning of a sharecropper. Sharecropper means bataidar, means a sharecropper is a farmer who pays the rent for their land with some of the crops. So in this chapter, actually, this chapter is regarding about the life event of Mahatma Gandhi. Here, Mahatma Gandhi is one of the central character, main character, whereas the peasant, Rajkumar Shukla, is one of the other main character. यहाँ पर जो राजकुमार शुक्ला है, actually he took Gandhiji to different places, and through him, Gandhiji just came to know about the other places and just he helped the sharecroppers to solve their problems. यहाँ पर जो character है, राजकुमार शुक्ला has been described as one of the resolute, persistent character. Means एक जिद्दी, हट्टी type farmer है. इस राजकुमार शुक्ला ने actually he had heard about Gandhiji a lot. तो यहाँ पे चंपारण में ये जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे रिगार्ड ऑल द शेयर क्रॉपर्स रिगार्डिंग इंडिगो, तो एक्चुअली ये चाहते थे दैट ही नीड्स समवन हु कुड हेल्प देम टू जस्ट took out from the clutches of these Britishers or from these landlords. So यहाँ पर जो राजकुमार शुक्ला है, actually he went out in search of Gandhiji. जहाँ जहाँ गांधी जी जाते, राजकुमार शुक्ला एक्चुअली ही अकम्पेन हिम देयर ओनली, वहाँ उनके पीछे जाते. उनकी एक्चुअली एक ही रिक्वेस्ट थी कि वो चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ चंपारण आए और ये जो क्रिटिकल सिचुएशन वो लोग फेस कर रहे हैं, शेयर प्रॉपर्स की जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करें. बट गांधी जी एक्चुअली ही हैड नो टाइम टू कम विद राजकुमार शुक्ला. तो हमारा जो चैप्टर है, एक्चुअली दिस चैप्टर स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल इवेंट. It starts with the event of in December 1916, when Gandhiji had gone to annual convention of the Indian National Congress, which was held in Lucknow. Okay, and no doubt, यहाँ पर जो है Gandhiji has played the main role in the chapter, but apart from that, Rajkumar Shukla also just took him to different places. तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलते हैं लखनऊ में, एंड वो इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने आप को कि दैट आई एम राजकुमार शुक्ला. ओके, और मैं राजकुमार शुक्ला हूँ एंड ही इज वन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट. अब एक्चुअली गांधी जी एक्चुअली ही डिडंट नो अबाउट चंपारण कि वेयर चंपारण इज सिचुएटेड. देन गांधी जी सेड that Champaran is situated in the foothills of the Himalayas near the Kingdom of Nepal. And after that, Rajkumar just told him, under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar.
अगर आपका क्वेश्चन आए कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी जी, तो इसका मेन आंसर था he approached Gandhi ji about the injustice of the landlord system in Bihar. And somebody had probably said, speak to Gandhi. So here he went to Gandhi ji to bring him to Champaran. And after that, actually Gandhi ji was quite busy. Actually, he didn't have time to accompany Rajkumar Shukla. लेकिन जहां जहां गांधी जी जाते राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे जाते, बस उनका एक ही मोटो था कि किसी तरह से गांधी जी को he would bring गांधी जी to चंपारण. वो उनको लखनऊ फॉलो करते हैं, लखनऊ ही फॉलोड हिम टू कानपुर, एंड फ्रॉम कानपुर वो उनके आश्रम तक, जो कि उनका आश्रम अहमदाबाद सिचुएटेड है, वहां तक वो उनको फॉलो करते हैं. When Gandhi ji saw his persistence, strong willed, quite determined, ये देखो मतलब ये जो इंसान है, in order to solve the problem of other sharecroppers as well as his own problem, he just accompanied him everywhere. और वो सिर्फ यही, ये उसकी strong will, उसका determination, और उसके determination will को देख के गांधी जी was very happy. और गांधी जी उनको बोलते हैं कि तुम so and so डेट को मुझे कोलकाता मिलना, वहां पर जब मेरी मीटिंग होएगी तो उसके बाद मैं फ्री होऊंगा, and then I will accompany you. And after that, when Gandhiji got free in Kolkata, he accompanied Rajkumar Shukla. And that now the journey starts. अब दोनों की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है. From the peasants Rajkumar Shukla, and the other one is the Mahatma Gandhi. So what they did, सबसे पहले वो ट्रेन बोर्ड करते हैं और वो ट्रेन से कहाँ जाते हैं? They went to Patna. And after just reaching Patna, यहाँ पर जो है राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को लेके जाते हैं कहाँ पे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि एक लॉयर है, उसके घर पे लेके जाते हैं. Unfortunately, when both of them reached Rajendra Prasad's home, actually Rajendra Prasad was not at home. His servant was there. तो उसका जो सर्वेंट है, actually he knew राजकुमार शुक्ला. Actually राजकुमार शुक्ला को पहले से ही जानते थे, क्योंकि उनको पता था कि एक्चुअली एक ही पीजन है जो बार बार उनके मास्टर को आगे परेशान करता है. When the servant of Rajendra Prasad, so both of them, जब दोनों को देखता है, महात्मा गांधी को भी, एक्चुअली यहाँ पे जो सर्वेंट है, एक्चुअली he also didn't know about महात्मा गांधी. एक्चुअली उसको लगा कि जैसे राजकुमार शुक्ला एक पुअर योमैन पीजेंट है, इन द सेम वे शायद जो गांधी जी हैं वो भी पीजेंट है. And after that, they allowed him to sit on the floor on haunches. And after that, actually यहाँ पे when गांधी जी needs water, servant actually इसको मतलब डिनाई कर देता है to draw water from the well. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बता रखा है, that is the component of untouchability. यहाँ पे कि उस टाइम पे भी जो untouchability था वो बहुत ज्यादा prevail था in the society. And after that, when Gandhi ji reached there, Rajendra Prasad was not at home. And after this, Gandhi ji decided to go to Muzaffarpur. अब गांधी जी वहां से राजेंद्र प्रसाद के घर से कहाँ जाने को तैयार हो गए? टू मुजफ्फरपुर. एक्चुअली व्हाई डिड वांट टू गो टू मुजफ्फरपुर? एक्चुअली यहाँ पर जो है, यहाँ पे चंपारण पहुंचने से पहले एक्चुअली ही वांटेड टू कलेक्ट द फैक्ट्स, ही वांटेड टू नो एवरीथिंग रिगार्डिंग द केस, जो कि राजकुमार शुक्ला ने उसको बताया है. उससे भी मतलब वो इस केस को बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छे से जानना चाहते थे, और उससे रिलेटेड कोई भी जो फैक्ट्स थे, कोई भी जो हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड वो एक्चुअली ही वांटेड टू नो एवरीथिंग अबाउट द हिस्ट्री. एंड आफ्टर दैट हो सकता है कि ऐसे फैक्ट्स हो जो राजेंद्र जो कुमार है उनको प्रोवाइड नहीं कर पाए, पहले से ही आपने पूरे फैक्ट्स कलेक्ट करना चाह रहे थे. बिफोर दैट he wanted to just contacted Professor J.P. Kripalani. और ये जो J.P. Kripalani है, उन्होंने इनको टैगोर के स्कूल में शांति निकेतन के वहां पे मिले थे. So after that he went Muzaffarpur. यहाँ पर है जो मतलब he was received by Kripalani with the other students, और कृपलानी उनको रिसीव करते हैं at midnight on 15th April 1970, right? And गांधी जी को वहां से रिसीव करते हैं, और मुजफ्फरपुर जो कि इन रूट टू चंपारण पड़ता है, गांधी जी वेंट देयर. एंड आफ्टर दैट वो गांधी जी वहां पर एक टीचर है, एंड वो जो प्रोफेसर है मलकानी, उनके घर रुकते हैं. और मलकानी कौन था? मलकानी वाज अ गवर्नमेंट टीचर एट दैट टाइम.
मीन्स मलकानी जो टीचर है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंडर काम करता था और गांधी जी वहां पे मुजफ्फरपुर मलकानी के टीचर के यहाँ पे ही जस्ट स्टेड देयर फॉर 2 days। एंड यू नो स्टूडेंट्स, उस टाइम ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल मीन्स यहाँ पे क्या है, द वर्कर्स हु वर वर्किंग अंडर ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो उनकी ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंडर काम कर रहे हैं, वहां पे जब गांधी जी रुकते हैं, वो गांधी जी को शेल्टर देते हैं, तो यहाँ पे कहा गया एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि अपनी पोस्ट पे ब्रिटिशर्स के अंडर काम करते हुए वो मतलब एक वो ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे पर्सन को just he gave the shelter who were against the British officers. But still then, Malkani, he welcomed Gandhi ji. And after that, when he stayed there for 2 days, actually there also, the masters, there also he collected the facts. जब वो मलकानी के घर पे होते हैं, the other peasants also heard about Gandhi ji. सभी गांधी जी के बारे में सुनते हैं। एक्चुअली वो इतना कुछ गांधी जी के बारे में जानते नहीं थे, but they know only one thing, कि देयर इज अ महात्मा हु केम देयर टू हेल्प हिम। अब सब लोगों गांधी जी के बारे में सबको पता चल गया, जो कि चंपारण से चल के मुजफ्फरपुर आए हैं सारे के सारे पीजेंट्स जस्ट इन ऑर्डर टू लुक गांधी जी कि ये कौन महात्मा है जो कि उनके राइट्स के लिए फाइट करने के लिए उनके साथ है। अब नाउ व्हाट हैपन इन मुजफ्फरपुर, द नेक्स्ट इवेंट ये था, नाउ हियर गांधी जी ही मेट द लॉयर्स, और उन लॉयर्स से मिलते हैं जो इनकी पीजेंट्स, जो शेयर क्रॉपर के जो केस हैं वो कोर्ट में लड़ रहे हैं। और when Gandhiji came to know that these lawyers they charged high fee from these farmers, and he just made him realize कि what they are doing, they are not doing good to these farmers, and these farmers जो कि उनसे बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, and these farmers who could not afford this fees because of their economic condition. So Gandhiji scorned the lead lawyers. So Gandhiji had decided कि वो इन पीजन्स को 15% जो अरेंजमेंट का जो उनका चंपारण में यही केस चल रहा था 15% इंडिगो का। अब मैं आपको बताती हूँ ये 15% अरेंजमेंट केस है क्या। एक्चुअली गांधी का एक मोटो था कि यहाँ पे वो 15% अरेंजमेंट केस के अलावा he wanted to get free these farmers from the fear, from the clutches of these Britishers. सबसे पहले वो इन फार्मर्स में यूनिटी लाना चाहते हैं, जो ये फार्मर्स who had fear regarding these British officials, he wanted to remove the fear. अब now listen, what is the 15% arrangement क्या था? 15% arrangement था कि चंपारण के जितने भी लैंड थे उनको डिवाइड कर दिया गया था। उन लैंड्स को the lands were divided into small pieces, और ये सारे pieces हैं, this land was owned by the British landlords, और इन लैंड पर काम करते थे इंडियन फार्मर्स, और इन फार्मर्स को वो जो लैंड होल्डिंग है वो दी गई थी, और उन लैंड होल्डिंग को देकर उनको कहा गया था कि जितना भी वो उसकी जितनी भी होल्डिंग उस फार्मर के पास है उस होल्डिंग में से 15% होल्डिंग पर वो इंडिगो ग्रो करेंगे। ये उनकी कंडीशन थी लैंडलॉर्ड्स कि 15% लैंड पे जितना भी वो इंडिगो ग्रो करेंगे वो उस इंडिगो की हार्वेस्ट एज अ रेंट वो उसको सबमिट करेंगे। Somehow, जैसे ये केस चल रहा था, Britishers came to know that Germany had produced synthetic indigo. In meantime, Germany ने synthetic indigo grow कर लिया है, और यहाँ पर जो synthetic indigo impact पड़ा था national indigo पे, क्योंकि synthetic indigo जो है वो actually it is quite cheaper as compared to the national indigo. So now what happened? The British landlords they had denied their plan of 15% to grow indigo. अब उन्होंने कहा कि चलो तुम लोग है ना इंडिगो ग्रो मत करना इस 15% लैंड पे, तुम लोग क्या करना, उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स ने कि हम इस इंडिगो से चलो तुम लोग को मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया, डोंट ग्रो इंडिगो ऑन दिस 15% ऑफ लैंड, तुम ऐसा करना इससे बाहर निकलेगे, तुम हमें इसका कंपनसेट दे देना, तुम हमें इसको पैसे दे दो इसके 15% लैंड के बदले। अब नाउ व्हाट हैपेंड, सम ऑफ द फार्मर्स दे हैड डिपॉजिट द मनी, बट some of the farmers they resisted, उन्होंने oppose किया इस landlords, इस Britishers की जो पॉलिसी थी इसके अगेंस्ट, उनके साथ ill treatment किया गया, ठग्स बुलाए गए, उनको उनकी I mean they scolded them, they were maltreated, they were ill treated and they were beaten by these thugs.
और इस अरेंजमेंट को समझने के लिए गांधी जी एट दिस टाइम ही वेंट टू चंपारण, तो वो चंपारण में जाते हैं। सो इन द चंपारण फर्स्ट स्टेप गांधी जी ने क्या किया, व्हेन गांधी जी वेंट टू चंपारण ही डिड फर्स्ट ही डिड, वो वहां पे जाके सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है वो उनसे मिलते हैं, बट जो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है ही डिनाइड टू जस्ट, उनको कोई भी इंफॉर्मेशन देने से उनको डिनाई कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट तो उसने कहा, अब गांधी जी ने क्या किया, अब यहाँ पे उनका मतलब गांधी जी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सो व्हाट डिड गांधी जी नेक्स्ट डू, अब नाउ गांधी जी वेंट टू कमीशन ऑफ द त्रिहुट डिवीजन। अब गांधी जी जो त्रिहुट डिवीजन है वहां पर जाते हैं। ये त्रिहुट डिवीजन जो है इट वाज अंडर द चंपारण के अंडर आता है। आप कमिश्नर उन्हें वार्न करते हैं और कहते हैं इट इज बेटर इफ यू लीव दिस प्लेस, क्विट दिस प्लेस, तुम यहाँ से चले जाओ। और कमीशन उनको बोलते हैं गांधी जी को दैट यू आर एन आउटसाइडर एंड वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स। एंड फ्रॉम देयर गांधी जी वेंट टू मोतीहरी, वहां से गांधी जी मोतीहरी जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, व्हाट द एफर्ट्स, हाउ मच एफर्ट्स गांधी जी इज डूइंग फॉर दीज पीजेंट्स। अब देखो गांधी जी तो आउटसाइडर ही है ना, चलो हम मानते दे आर इंडियंस राइट, बट स्टिल गांधी जी एक्चुअली ही डिडंट नो अबाउट द चंपारण, he didn't know about राजकुमार शुक्ला, तो राजकुमार शुक्ला तो उनके लिए स्ट्रेंजर ही है ना। just he requested him to accompany him, so he went there and now see अब गांधी जी कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। गांधी जी has put his best to just take out the solution for the sharecroppers। अब वहां से जो गांधी जी हैं he went to मोतीहरी जो कि चंपारण की कैपिटल है। वहां पर जो है एक्चुअली जब उन्होंने देखा कि कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा है, सो देयर व्हाट द गांधी जी डिड, वहां पर गांधी जी एक छोटे से घर में अपने एक हेडक्वार्टर बना लेते हैं और वहीं से अपना मिशन कंटिन्यू करते हैं। तभी उन्हें देन ही हर्ड व्हेन ही स्टार्टेड हिज वर्क, उनको ऐसा लगा कि अ फार्मर इज मालट्रेटेड मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया है ब्रिटिशर्स ने। देन व्हाट हैपेंड, गांधी जी डिसाइडेड टू मीट दैट फार्मर पर्सनली। अब गांधी जी उस फार्मर से मिलने के लिए जस्ट ही अकम्पेन्ड देयर ऑन एन एलिफेंट, वो हाथी पे बैठ के जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तभी तभी ही वाज स्टॉप्ड ऑन द वे, गांधी जी को रोक दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है जब उन्होंने देखा, ब्रिटिशर्स ने देखा, ऑफिशियल्स ने देखा कि भाई गांधी जी जो है मतलब वो इन फार्मर्स को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहा है। सो ईच एंड एवरी स्टॉप गांधी जी वाज स्टॉप फॉर प्रोसीडिंग फर्दर। अब वहां पर उनको रोक दिया जाता है आगे जाने से और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस मिलता है। ही गॉट एन नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स और उस नोटिस में लिखा होता है क्विट चंपारण, बट गांधी जी डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी ने कहा नो, ही डिसओबे द ऑर्डर। अब यहाँ पर जब गांधी जी ने उनके ऑर्डर को डिसओबे कर दिया, and he said that he is an Indian and no one would allow him to just leave the place. So in consequence of to quit the order, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको ऑर्डर पास आउट किया था यू क्विट चंपारण। अब यहाँ पे गांधी जी ने डिनाई कर दिया एंड आफ्टर डिनाइंग व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब रिजल्ट इस डिनाई करने का कॉन्सिक्वेंस क्या रहा। वी गॉट द कॉन्सिक्वेंस दैट गांधी जी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट में जाने से पहले गांधी जी एक्चुअली ही टॉक टू राजेंद्र प्रसाद और उनको बोलते हैं दैट ही वुड कम टू कोर्ट विद द इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स। इसके साथ साथ वो एक्चुअली विसरॉय को एक रिपोर्ट भी भेजते हैं और आश्रम भी वो कांटेक्ट रखते हैं। अब ना उनकी हियरिंग वाले दिन देयर वाज अ सरप्राइजिंग थिंग, क्योंकि अब तो कोर्ट में है ना, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर डिनाई कर दिया तो देयर वाज अ केस गोइंग अगेंस्ट गांधी जी। And what happened in the court? There was a surprising thing happened there. A surprising thing क्या हुआ उस court में? He saw that all the peasants gathered there. जिसने सुना कि there is a Mahatma, a person, जो कि एक unknown person है, and who is fighting for the rights of these peasants. All the peasants gather over there. और सारे peasants वहाँ के इकट्ठे हो गए. And जब government officials ने उस भीड़ को देखा, so they could not able to manage the crowd. They could not able to circulate the crowd. और यहाँ पर जो है अब फर्स्ट टाइम ऐसी कंडीशन प्रिवेलिंग होगी चंपारण में कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं they were feeling helpless.
and now they wanted गांधी जी to help them. और अब उनको गांधी जी की हेल्प लेनी पड़ी. And on this गांधी जी was happy. और उन्हें सोचा कि जो डर वो उनके अंदर से बाहर निकालना चाहते थे और जो यूनिटी वो फार्मर्स के अंदर डालना चाहते थे, वो उन्होंने उसका एक विटनेस देख लिया है कि ना अब उन्होंने सोचा कि मेरे जो एफर्ट्स, व्हाट द एफर्ट्स आई एम पुटिंग इन फेवर ऑफ दिस पीजेंट्स, मैं जो एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ अब वो एफर्ट्स फ्रूटफुल हो रहे हैं. एंड नाउ व्हाट हैपेंड, द प्रोसिक्यूटर requested the judge to postpone the hearing. तो अब यहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने जज से मतलब व्हाट क्या रिक्वेस्ट की कि चलो इनकी हियरिंग को पोस्टपोन करो. बट गांधी जी डिनाई और कहते हैं कि उनकी हियरिंग आज ही हो, डिनाई नाउ. एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, मतलब गांधी जी ने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट की. उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरी एक ही मिस्टेक है. और जज के सामने बोलते हैं कि उनकी मिस्टेक, उन्होंने सिर्फ एक ही मिस्टेक की है और उन्होंने कहा ये मिस्टेक करना बहुत ज्यादा जरूरी था. और वो मिस्टेक उन्होंने की है कि फार्मर्स के अंदर एक फीलिंग ऑफ यूनिटी डाली है उन्होंने. और वो चाहते थे और वो खुद चाहते थे कि उन फार्मर्स में एक वो फीलिंग ऑफ यूनिटी जरूर आए. उसके बाद वो जज से कोर्ट में अपनी ड्यू पेनल्टी के बारे में पूछते हैं. बट कोर्ट व्हाट हैपन, थोड़ी देर में उनको रिलीज कर देती है. बट गांधी जी, यहाँ पे गांधी जी अब तो फ्री हो गए. बट द लॉयर्स आस्क्ड देम कि अब यहाँ पर गांधी जी ने लॉयर से पूछा. उन्होंने कहा कि अगर सपोज मान लो, लॉयर्स मतलब जो राजेंद्र प्रसाद है और जो इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स वो उनके साथ लेके आए हैं, वो उनसे पूछते हैं अगर सपोज मान लो इस केस में अगर मुझे जेल हो, सो व्हाट पीपल यू विल डू, व्हाट यू विल डू, तुम लोग क्या करोगे. अब यहाँ पे अब उन्होंने कहा कि what they will do, कहा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, will return back to our homes. So now what happened, now गांधी जी thought कि जिस तरीके से उन्होंने फार्मर्स के अंदर एक फीलिंग ऑफ यूनिटी लेके आए हैं कि now they recognize their rights, कि भाई हमें अपने हक के लिए लड़ना है, वैसे ही यूनिटी गांधी जी want to bring under these lawyers, अंडर दीज इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स. उन्होंने सोचा कि अगर इनके अंडर भी यही फीलिंग आ जाएगी तो ये जो चंपारण में जो रिवॉल्ट चल रहा है, जो मतलब चंपारण में ये केस चल रहा है रिगार्डिंग शेरकॉपर, इट वुड बी इजी टू हैंडल. सो नाउ व्हाट हैपन, अब हियर द लॉयर्स ने भी रियलाइज किया और द लॉयर्स रियलाइज कि दो वी आर एट द ऑफिशियल ड्यूटीज बट स्टिल वी आर इंडियन. जब यहाँ पे गांधी जी ने इन लॉयर्स को स्कोल्ड किया कि भाई तुम लोग इंडियन होते हुए ये जो फार्मर्स हैं जो हेल्पलेस हैं, तुम इन फार्मर्स को मतलब बड़े बड़े ड्यूज ले रहे हो ऑन द नेम ऑफ दीज शेयर क्रॉपिंग का जो केस चल रहा है उस पर तुम इतना पैसा इन पे हड़प रहे हो. व्हाट डू यू थिंक, इज इट राइट ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी? सो दे रियलाइज देयर मिस्टेक. अब फार्मर्स ने भी अपनी मिस्टेक रियलाइज की. दे रियलाइज कि भाई जो ये गांधी जी हैं एक्चुअली ही इज एन आउटसाइडर ही है. दे डोंट नो अबाउट द पीजेंट्स एंड स्टिल he is putting his best, still he is fighting for the rights of these peasants. So now all the lawyers here realize their mistakes and now they had started and they had thought they would accompany Gandhi ji. अगर गांधी जी जेल चले जाते हैं so they will with him गांधी जी, और वो प्रोटेस्ट करेंगे. They made him sure that they will protest. And just looking at this, Gandhi ji was very happy. अब गांधी जी ने सोचा, he saw that lawyers were with him. He thought the battle of Champaran has won. ये very important question बनेगा बेटा कि गांधी, when did Gandhi ji think the battle of Champaran has won? जब उन्होंने देखा all the lawyers were with him. After some days, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट्स से पता चलता है कि गांधी के अगेंस्ट जो केस चल रहा था उस केस को ड्रॉप कर दिया गया था. अब जब अगेंस्ट ये केस ड्रॉप हो गया, इट वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट सिविल डिसओबीडियंस वॉन. एंड आफ्टर दैट एक ऐसा पहला एपिसोड था गांधी जी की लाइफ में जो सिविल डिसओबीडियंस की पहली जीत मानी जाती थी. नाउ
आफ्टर दैट द केस कैंसिल होने के बाद गांधी जी सर एडवर्ड गेट से मिलते हैं और ऐसी 4 मीटिंग्स जस्ट ही कंटिन्यूड 4 मीटिंग्स विद द एडवर्ड गेट और वो इस केस की ऑफिशियल्स मीटिंग बैठाते हैं। एक्चुअली नाउ जो उनका जो एक्चुअली ये एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है, उन इंक्वायरी कमेटी में ब्रिटिश ऑफिसर की तरफ रिप्रेजेंटेटिव थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे एंड यहाँ पर जो फार्मर्स का होल एंड सोल रिप्रेजेंटेटिव ओनली सिर्फ गांधी जी थे। अब वो इन कमेटी बैठती है, इंक्वायरी बैठती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिपोर्ट द ब्रिटिशर ऑफिसर्स फाउंड गिल्टी, वो अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करते हैं और जो 15% की जो पेमेंट उन लोगों ने जो फार्मर से ली थी, दे वर एग्री टू पे द रिफंड टू दीज फार्मर्स, टू दीज शेयर क्रॉपर्स, वो उनको पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो दिस इज ब्रेकिंग द डेडलॉक स्टूडेंट्स। अगर ये क्वेश्चन ब्रेकिंग द डेडलॉक मतलब काम टू एन एग्रीमेंट, कि वो लोग एक एग्रीमेंट में क्या होता है कि किसी तरह से तो ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी हार मानी, उन्होंने अपने घुटने टेक दिए, उन्होंने मतलब गांधी जी कहते ना फाइटिंग फॉर द ट्रूथ फॉर दी शेयर क्रॉपर्स। सो हियर गांधी जी मेड देम रियलाइज देयर मिस्टेक्स। सो दिस इज ब्रेकिंग द डेडलॉक। वो सोचते हैं कि गांधी जी मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश ऑफिस सोचते हैं गांधी जी डायरेक्ट मुझसे 100% पेमेंट रिफंड मांगेंगे, बट गांधी जी डिमांडेड ओनली 50% पेमेंट। बट ब्रिटिश ऑफिसर्स कहते हो कि उनको 50% पेमेंट रिफंड नहीं करेंगे, they will refund only 25% पेमेंट वापस करेंगे। बट स्टिल गांधी जी was happy। अब गांधी जी हैप्पी क्यों थे? क्योंकि ब्रेकिंग द डेडलॉक। गांधी जी इसी चीज को बहुत खुश थे कि यहाँ पे किसी तरीके से जो ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, एक्चुअली दे felt them as guilty and they realize their mistakes। और यहाँ पर जो है मेन जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि द फार्मर्स टेक ऑन द चैप्टर ऑफ यूनिटी। द फार्मर्स दे बिहेव अबाउट द लॉर्ड्स, वो फार्मर्स जिनको हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता था, आज उनको अपनी यूनिटी की कदर है। They had realized the unity and after that these peasants they behaved about the lords। Now the British officials accepted this mistake। और यही था स्टूडेंट्स ब्रेकिंग द डेडलॉक कि किसी तरह से कोई समझौता होना, किसी एग्रीमेंट पे तय होना, क्योंकि पहले जो है जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स एक्चुअली दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। देखो जहां जहां मैंने हिस्टोरिकल इवेंट्स बताए, यहाँ पर हमेशा मैंने आपको बताया है दैट मच शेयर क्रॉपर्स वर मालट्रीटेड, दे वर थ्रेटन्ड, दे वर हायर्ड ठग्स, दे वर बीटन। तो हमेशा उनके साथ माल ट्रीटमेंट किया जाता, बुरा व्यवहार किया जाता। पर लेकिन जब भी गांधी जी गए हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर गए हैं, त्रिहुट डिवीजन गए हैं, चंपारण गए हैं, these British officials they always just want him to quit Champaran to leave the place, but still Gandhiji stayed there। Gandhiji put his best in all his ways because वो well determined थे। किसकी तरह well determined थे? Like राजकुमार शुक्ला, कि चाहे कुछ भी हो मुझे इन शेयर क्रॉपर्स का जो हक है, जो राइट है, जो ये ब्रिटिश ऑफिसर्स उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आई हैव टू जस्ट stop this exploitation। So in this committee, Gandhi was the only sole representative from the behalf of the farmers। And after that, जो sharecropping system था was over in Champaran। Students, this is a historical event regarding India। यही नहीं, गांधी जी continuously stayed in Champaran। अब उन्होंने देखा कि चलो जो शेयर क्रॉपर्स की जो प्रॉब्लम है that was solved, but still there were several other problems that need to be rectified। Actually वो socially बहुत ही ज्यादा backward था चंपारण। So there गांधी जी he worked on the education system। वहां पर गांधी जी ने प्राइमरी स्कूल्स बिल्ड अप किए and यही नहीं, he improved their social, their economical, their health conditions। अब ना यहाँ पर जो है एजुकेशन के रिलेटेड उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स बनाए and even as far as the health condition is concerned, actually he provided डॉक्टर्स, जहाँ पर डॉक्टर्स ने 6 months वॉलंटरी सर्विस किया और वहाँ पर कुछ मेडिसिन हर किसी को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कैस्टर ऑयल है, क्विनिन है, राइट। एंड आफ्टर दैट सिर्फ यही नहीं,
Even Kasturba Gandhi, even she also just accompanied Gandhi ji. Kasturba Gandhi भी वहाँ पे she helped the women. She जो women है उनको कस्तूरबा गांधी ने चैप्टर टीच किया. Kasturba Gandhi taught the chapter of hygienic, taught the chapter of cleanliness to ladies. And यही नहीं, उनके जो बेटे हैं वो भी उनके साथ थे. And in fact, he just Gandhi just stayed there for many years. And just they worked for the upliftment of the Champaran district. यही नहीं, at last, Gandhi taught them the chapter of self-reliance. How did Gandhi taught the chapter of self-reliance, students? This incident and this event is very, very important regarding this. Actually, self-reliance के chapter में ये था कि यहाँ पर जो है one of the English pacifist and his name was Charles Frere Andrew. Actually, he was a devoted follower of the Mahatma Gandhi. Just before going to Fish Island, actually he wanted to meet Gandhi. ये जो Charles Andrew English pacifist थे, pacifist means who believe in peace, शांति प्रिय. वो actually गांधी जी के इस वर्क से, गांधी जी के इस एफर्ट से, या ये कर लो गांधी जी की पॉलिसीज, ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय गांधी जी. तो वो गांधी से मिलना चाहते हैं वहां से जाने से पहले. एंड वो उनसे पूछते हैं कि on the part of the Britishers, would they just help him? इसी तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं. तो बट यहाँ पे जब लॉयर्स हैं ये सुना कि भाई कोई ब्रिटिश ऑफिसर उनकी हेल्प करना आ जाता है, द लॉयर्स दे वर वेरी हैप्पी. उन्हें लगा कि चलो भाई हमारे साथ कोई तो है जो हमारी मतलब ब्रिटिश की तरफ से हमारी तरफ बोल रहा है. बट स्टिल गांधी जी डिनाइड द फैक्ट. गांधी जी उनको मना कर देते, कहते नो. आफ्टर ऑल ही वाज एन इंग्लिश मैन. एंड वो कहते हैं दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट. And after that, what happened? He denied this proposal, and in this way, Gandhiji taught the chapter of self-reliance, Atmanirbhar chapter. So, this is all about the historical event which took place in India. Now, students, this is all about the summary of the chapter. And from the next class, I want everyone should have the books. I'll just explain the chapter tomorrow. Okay, students, this is all about today's class.